और यहाँ से सीधे रुख करेंगे प्रधानमंत्री निवास का, जहाँ पर गणतंत्र दिवस पर सम्मानित होने वाले बहादुर बच्चे इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। साहस वाले ये बच्चे अब माननीयों का स्वागत करेंगे। शिवम पेट रुचिता से हम निवेदन करते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को बुके भेंट करके उनका स्वागत करें। तेलंगाना से हैं ये। राकेश भाई शनाभाई पटेल से आग्रह है कि माननीय श्रीमती मेनका गांधी का स्वागत करें फूलों से। इन नन्हे वीर सिपाहियों के अडिग साहस से भारत माँ का और हर भारतीय का सर गर्व से आसमान छूता है। स्प्रिंगडेल्स स्कूल पूसा रोड के बच्चे इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं गीत के द्वारा। आइए सुनते हैं। These were the visuals we were getting for you from 7 RCR, where Prime Minister Narendra Modi is to meet the brave children today, and we'll get you the proceedings from that program in short while from now. But first, we'll get to the headlines. We're tracking this up. French President Francois Hollande to begin his 3-day India visit from Chandigarh today. President Hollande, along with Prime Minister Narendra Modi, to address CEO Forum and attend India-France Business Summit and also visit various landmarks in the city. Elaborate security arrangements are in place at all vital installations. BJP President Amit Shah is all set to start new term from today as he is tipped to be elected unopposed for the top party post. This will be his first full term, which will last for 3 years. External Affairs Minister Sushma Swaraj is in Bahrain to participate in the first ministerial meeting of the India-Arab League Cooperation Forum. External Affairs Minister to push for deepening India's ties with the 22-member group. Holds talks with King of Bahrain. Also marked progress on consular matters. Signed agreement on transfer of sentenced prisoners. Kerala Excise Minister K. Babu resigns following a case against him for his alleged involvement in the bar bribery license case. He is the second minister to resign in this case. Kerala Finance Minister K. M. Mani had earlier resigned in November last year. Dense fog affects normal life in most parts of North India, which continues to reel under cold weather conditions. Air and rail traffic disrupted due to fog. Leh is frozen at minus 19 degrees Celsius.
Snowstorm blizzard brings much of US East Coast to a standstill, shuts down New York City. All non-essential travel banned in New York. Transport suspended and bridges shut as the city is hit by one of its worst snowstorms. In sports, ace shuttler PV Sindhu continues her good form to face Scotland's Christy Gilmore in the Malaysian Masters Grand Prix Gold Badminton Tournament final today. Those were the top stories. We'll start the news with the visit of French President François Hollande to India. French President François Hollande will arrive on a three-day visit to India from today. French President is the chief guest for the Republic Day parade at Rajpath this year. Now, this is the fifth time that a serving president of the French Republic will be the chief guest at India's Republic Day function, which is a record in itself. No other country has had this honor so many times. Accompanied by a high-level delegation, Hollande will land around 1 p.m. in Chandigarh, which was designed by Swiss-French architect Charles-Edward Jenneret Gris, also known as Le Corbusier, between 1950s and 1960s. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to join the French President in Chandigarh. Both the leaders will visit Rock Garden, Capitol Complex and Government Museum and also the Art Gallery. The two leaders will also address a CEO Forum and India-French Business Summit. On the 25th, President Hollande will be accorded ceremonial reception at the Rashtrapati Bhavan. Later, he will hold bilateral talks with Prime Minister Modi at Hyderabad House. Thereafter, signing of agreements in various key sectors will take place. Meanwhile, Chandigarh has been put under maximum security cover ahead of the arrival of French President François Hollande and Prime Minister Narendra Modi on Sunday afternoon. Security around Hotel Taj, where the French President will stay during his 5-hour stop in the city, is at its maximum, with scores of armed commandos and policemen swarming the place. And also speaking to news agency PTI before the big visit, French President François Hollande has said that the multi-billion-dollar Rafale jet deal is on the right track, but agreed that technicalities are taking time. On India's demand for action by Pakistan in Pathankot terror attack, he said that India is fully justified to ask for justice against the perpetrators. The French President congratulated Prime Minister Modi for his diplomacy, reflecting both a sense of proportion and a strong determination. He also said that India and France are rather united in their determination to act together against terrorism. BJP President Amit Shah is all set to start a new term from today as he is tipped to be elected unopposed for the top party post. The nomination for the party national president will take place between 10 a.m. and 1 p.m. today, and the scrutiny will be done today itself. His election virtually is a formality, and Amit Shah's current tenure ended on Saturday, and the new term will be his first full term lasting 3 years. Amit Shah has been re-elected as BJP president, and this will be his first full term of 3 years. He is known to be a great political strategist and a well-organized party worker. He started his political career with Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad in 1982 in Ahmedabad and continues to scale new heights in his career. He also holds the record of winning by the biggest margin in assembly elections in Gujarat. Shah was elected as BJP Secretary General in 2010. Later, he had been appointed as the person in charge of Uttar Pradesh. In 2014 Lok Sabha elections, BJP and its allies won 73 out of 80 seats in Uttar Pradesh, and Amit Shah was highly applauded for this historic win. In a newly formed centre government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi in May 2014, Rajnath Singh was elected as Home Minister, and thereafter Amit Shah was elected unopposed as party president. Under Shah's leadership, BJP scaled new heights in Haryana, Jharkhand, Maharashtra and Jammu and Kashmir. It also became the biggest political party in the world with over 10 crore membership. Amit Shah is elected for the top party post at a time
when elections in West Bengal, Assam, Tamil Nadu, Kerala are lined up this year, where BJP has been trying to establish itself. All eyes will now be on Amit Shah to see that how far he will take the party after being crowned as the BJP president once again. We'll get to more on that report in a while from now, but from here we'll take you live to 7 RCR, where Union Minister for Women and Child Development, Maneka Gandhi, is addressing the gathering. 25 children were announced for National Bravery Awards and they are to meet the Prime Minister today. We take you live to the gathering. Acts of courage which will inspire other children to follow your courageous example. We are proud of you. I'm happy to see that in this grouping there are also 3 young girls who have performed acts of valor. The contributions for this award are made by the Ministry of Women and Child Development, ICCW, and individuals. I would like to place on record my appreciation for those people who have made contributions for the noble cause of awarding brave children. I once again express my deep appreciation. I wish you well in life and may you continue to be brave in all the challenges that come now. Thank you. धन्यवाद श्रीमती मेनका गांधी। ICCW इन बहादुर बच्चों की 12वीं तक की शिक्षा स्पॉन्सर करने की जिम्मेदारी निभा रहा है और आगे की उच्च शिक्षा में भी सहायता करता है और हमें गर्व है ये बताते हुए कि आज यही बच्चे आगे जाके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट, साइंटिस्ट, मिलिट्री ऑफिसर्स बनके देश की सेवा कर रहे हैं। ICCW आज एक किताब ऐसे ही एबल और काबिल बच्चों को डेडिकेट कर रहा है जिन्होंने नई जिंदगी की नई उड़ान हासिल की है। नाम है लाइफ प्रोग्रेशन ऑफ ICCW नेशनल ब्रेवरी अवार्डीज। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र विनती करते हैं कि कृपया इस किताब का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें। धन्यवाद माननीय। समय को और स्वयं को लांघकर जज्बे की मिसाल कायम करने वाले, अपने नन्हे बुलंद हौसले से साहस की नई परिभाषाएं गढ़ने वाले इन शिखरों को अब पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा सादर अनुरोध है कि कृपया ये पुरस्कार अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। भारत पुरस्कार गौरव कवरू जी, सहस्त्रबुद्धि, महाराष्ट्र, 15 साल 10 महीने। इन्हें ये पुरस्कार मरणोपरांत हासिल हो रहा है। यहाँ भी खड़े रहेंगे, थोड़ा साइटेशन पढ़ देते हैं। 3 जून 2014 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले में 4 लड़के एक झील के पास खेल रहे थे। अचानक एक बच्चा डूबने लगा। उसे बचाने की कोशिश में उसके मित्र भी डूबने लगे। गौरव सहस्त्रबुद्धे ने पानी में छलांग लगा दी और एक एक करके उन्हें बाहर निकालने लगा, परंतु थक जाने के कारण खुद को नहीं बचा सका। हम इस तरह से गौरव कवरू जी सहस्त्रबुद्धि के बारे में ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए 4 बहुमूल्य जीवन बचाने की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। और अब हम निवेदन करते हैं गौरव के माता पिता से कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ये पुरस्कार हासिल करें। गीता चोपड़ा पुरस्कार शिवमपेट रुचिता, तेलंगाना, 8 साल 1 महीने। 24 जुलाई 2014 की सुबह ड्राइवर ने एक रेलवे क्रॉसिंग पर पटरी के पास स्कूल बस रोकी। रेलगाड़ी को तेजी से बस की तरफ आता देखकर रुचिता ने तुरंत 2 बच्चों को खिड़की से बाहर धकेला। दुर्भाग्यवश अन्य बच्चों को जब तक वो बचा पाती पहले ही रेलगाड़ी बस से टकरा चुकी थी और उसे स्वयं बस से कूदना पड़ा। इस दुर्घटना में रुचिता ने अपनी छोटी बहन को खो दिया। शिवमपेट रुचिता ने असीम साहस और दृढ़ता का परिचय देते हुए 2 बहुमूल्य जीवन बचा लिए। शिवमपेट रुचिता।
चोपड़ा पुरस्कार अर्जुन सिंह उत्तराखंड 16 साल। 16 जुलाई 2014 की शाम को अर्जुन सिंह अपने घर पर था। घर के बाहर अपनी मां की चीख की आवाज उसे सुनाई दी। एक बाघ ने उन पर हमला कर दिया था। अर्जुन ने दराती से बाघ पर प्रहार किया। बाघ अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा। उसने लाठी की सहायता से उसे भगाने का प्रयास किया और बाघ वहां से भाग गया। अर्जुन सिंह ने एक जंगली जानवर का सामना करके अदम्य साहस का परिचय दिया। अर्जुन सिंह बापू गयाधनी पुरस्कार एरोमल SM केरला 12 साल 4 महीने। 13 सितंबर 2014 की शाम एरोमल के पास के तालाब से कुछ शोरगुल उसे सुनाई दिया। 2 महिलाएं पानी में डूब रही थीं। एरोमल ने तुरंत ही 14 फुट गहरे तालाब में छलांग लगा दी। उसने उन्हें तालाब के किनारे की ओर खींचा। उसकी मां और अन्य पड़ोसी उन्हें तालाब से बाहर निकालने के लिए खड़े थे। इस तरह से एरोमल के सामूहिक और साहसपूर्ण कृत्य से 2 जीवन बच गए। एरोमल SM। बापू गयाधनी पुरस्कार हासिल होता है रामधुन तारा मिजोरम 15 साल 3 महीने इनकी उम्र है। ये घटना 2 जनवरी 2015 की शाम की है। 2 लोग अचानक सड़क से 3 मीटर की दूरी पर बने बिजली के ट्रांसफार्मर पर गिर पड़े। रामधुन तारा उन्हें बचाने के लिए दौड़ा। स्वयं की जान जोखिम में डालते हुए उसने उनके बाल पकड़कर उन्हें एक-एक करके सुरक्षित स्थान पर फेंका। रामधुन तारा ने निर्भीकता पूर्वक 2 अजनबी लोगों की जान बचाकर साहस और कर्तव्य परायणता का परिचय दिया। रामधुन तारा। बापू गयाधनी पुरस्कार राकेश भाई शना भाई पटेल गुजरात 13 साल। 14 जून 2015 की दोपहर दिनेश 20 फीट पानी में गिर गया। स्थिति को देखकर राकेश भाई घटनास्थल की ओर दौड़ा और कुएं में कूद गया। घास और लताओं का सहारा लेते हुए राकेश दिनेश के पास पहुंचा, उसे ऊपर की ओर खींचने लगा और 35 मिनट तक संघर्ष किया। इस बीच भीड़ एकत्रित हो गई। दोनों लड़कों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राकेश भाई ने अपने साहसिक और वीरतापूर्ण कृत्य से समाज के समक्ष निस्वार्थ सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। राकेश भाई शना भाई पटेल। नीलेश रेवाराम भी महाराष्ट्र 9 साल 2 महीने। 30 अगस्त 2014 की बात है। ऋषि पंचमी के अवसर पर मुक्ताई मंदिर के नदी के घाट पर बहुत से लोग स्नान कर रहे थे। अचानक ही नीलेश को कुछ चीख पुकार सुनाई दी। उसने देखा एक लड़का पानी में डूब रहा था। वो तुरंत ही 10 फुट गहरी नदी में कूदा और उस लड़के को बचा लिया। नीलेश ने उसे प्राथमिक उपचार भी दिया। नीलेश रेवाराम भील के साहसिक कृत्य ने एक लड़के का जीवन बचा लिया। नीलेश रेवाराम भील। जोयना चक्रवर्ती छत्तीसगढ़ 10 साल 8 महीने इनकी आयु है। 27 नवंबर 2014 की घटना है। जोयना चक्रवर्ती दिल्ली में शाम को अपने पिता के साथ सड़क पार कर रही थी तो एक बदमाश ने उसके पिता का मोबाइल छीनकर भागने लगा। जोयना ने तुरंत सड़क पर चल रहे वाहनों को रोकते हुए उसका पीछा किया, उसकी टांग पकड़ ली और साथ ही मदद के लिए चिल्लाने लगी। वो बदमाश बाद में पकड़ा गया। जोयना चक्रवर्ती ने निर्भीकता और अडिग साहस से चोर का सामना किया। जोयना चक्रवर्ती। भीमसेन उर्फ सोनू उत्तर प्रदेश 10 साल 11 महीने इनकी आयु है। घटना 16 अक्टूबर 2014 की है।
भीमसेन घाघरा नदी के किनारे पर था, तभी अचानक अधिक वजन के कारण एक नाव 30 मीटर गहरी नदी में डूबने लगी। भीमसेन तुरंत अपनी छोटी नाव लेकर वहां पहुंचा, चप्पू की सहायता से 11 लोगों की जान बचाई और बीच नदी में फंसे हुए कुछ और लोगों को भी बचाया। भीमसेन ने अपने साहसिक और निस्वार्थ कार्य से कई जिंदगियां बचाई। भीमसेन उर्फ सोनू। कशिश धनानी गुजरात, 10 साल 9 महीने इनकी आयु है। बात है 23 दिसंबर 2014 की। कशिश धनानी अपनी छोटी बहन कांची, जो कि 1.25 साल की है, उसके साथ अपार्टमेंट के बगीचे में खेल रहा था। अचानक एक कुत्ते जर्मन शेफर्ड ने कांची पर हमला कर दिया। कशिश निहत्था ही कुत्ते से लड़ पड़ा और साथ ही साथ मदद के लिए भी चिल्लाया। भीड़ देखकर कुत्ता भाग गया। कशिश ने अडिग साहस से अपनी छोटी बहन की रक्षा की। कशिश धनानी। वैभव रामेश्वर गंगारे, महाराष्ट्र, 9 साल 8 महीने इनकी आयु है। घटना है 26 जुलाई 2014 की। 6 वर्षीय सुहास दूसरे बच्चों के साथ खेलते खेलते अचानक नंदा नदी में गिर गया। नदी में बाढ़ आई हुई थी। नदी के बहाव के साथ वो पुल के नीचे एक सीमेंट के पाइप में फंस गया। वैभव तुरंत ही नदी में कूद पड़ा। सीमेंट पाइप से सुहास को बाहर धकेलते हुए उसे सुरक्षित नदी से बाहर ले आया। वैभव गंगारे के शौर्यपूर्ण और सामूहिक कृत्य ने डूबते हुए बच्चे को बचा लिया। वैभव रामेश्वर गंगारे। दिशांत मोलीरत्ता, हरियाणा, 12 साल 7 महीने इनकी आयु है। घटना है 4 अप्रैल 2015 की। अर्चना और उनके 2 बेटे घर पर थे। एक अजनबी उनसे मिलने के बहाने उनके घर आया। घर में घुसते ही बदमाश ने अर्चना के गर्दन पर चाकू रखते हुए उन्हें सभी कीमती सामान उसे देने को कहा। अपनी मां को छुड़वाने के बहाने दिशांत उसके पैरों में गिर गया। फुर्ती से उसकी टांग खींचकर उससे चाकू छीन लिया। इसके बाद दोनों मां बेटे ने उस चोर पर काबू पा लिया। बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी जान की परवाह न करते हुए दिशांत ने अद्भुत साहस से चोरी की वारदात को निष्फल कर दिया। दिशांत मोलीरत्ता। चौंगथम कुबेर मेटी, मणिपुर, 12 साल 11 महीने इनकी आयु है। 6 मार्च 2015 की घटना है। खेलते समय कुछ लड़कों की गेंद एक नजदीक के तालाब में गिर गई। जैसे ही कुबेर गेंद उठाने के लिए गया, उसने वहां एक 12 वर्षीय लड़की को 10 फुट गहरे तालाब में डूबते हुए देखा। उसने तुरंत छलांग लगा दी और लड़की को सुरक्षित बाहर निकाल लाया। चौंगथम कुबेर के वीरतापूर्ण कार्य से एक बहुमूल्य जीवन बच गया। चौंगथम कुबेर मेते। एंजेलिका टिंसांग, मेघालय, 13 साल 2 महीने इनकी आयु है और घटना है 31 जनवरी 2015 की। एंजेलिका अपने घर के बाहर कपड़े धो रही थी, जबकि उसका छोटा भाई जो कि 7 महीने का था, कामल घर के अंदर सो रहा था। उनके माता पिता घर पर नहीं थे। अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई घर में। तुरंत ही अपने भाई को बचाने के लिए वो अंदर भागी। अपने भाई और स्वयं को एक कंबल में लपेटा और बाहर आई। पूरा घर विनाशकारी आग में जलकर राख हो गया। अपने जीवन को खतरे में डालकर बहादुर एंजेलिका ने अपने भाई को बचा लिया। एंजेलिका टिंसांग। मोहित महीन दलवी, महाराष्ट्र, 14 साल 7 महीने इनकी आयु है। घटना है 25 अप्रैल 2015 की।
9 वर्षीय कृष्णा तालाब में स्नान करते वक्त डूबने लगी। अपनी सहेली का हाथ पकड़ा, लेकिन वो भी तैरना नहीं जानती थी। ये देखकर मोहित दलवी ने तुरंत 25 फुट गहरे पानी में छलांग लगा दी और कृष्णा को सुरक्षित बाहर निकाला। मोहित दलवी के असाधारण शौर्य से एक बहुमूल्य जीवन बच गया। मोहित महेंद्र दलवी। नितिन फिलिप मैथ्यू, केरला, 13 साल 7 महीने इनकी आयु है। 1 मार्च 2015 की घटना है। नितिन फिलिप खेल रहा था जब उसने अपने पड़ोसी की रसोई से कुछ धुआं निकलते हुए देखा। वो लोग शहर से बाहर गए हुए थे। आपने एक पड़ोसी की मदद से दरवाजा खोला। अपनी मां और अन्य लोगों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वो रसोई घर में गया और जलते हुए कपड़े को दूर फेंका। रेगुलेटर और सिलेंडर को भी वहां से हटाया। इस तरह से नितिन फिलिप ने अपने साहसिक और अविलंब कृत्य से एक अनहोनी होने से बचा लिया। नितिन फिलिप मैथ्यू। सर्बानंद साहा, छत्तीसगढ़, 15 साल 7 महीने इनकी आयु है और घटना है 6 अगस्त 2014 की शाम। मास्टर सर्बानंद साहा अपने स्कूल से वापस लौट रहा था। महानदी में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई थी। सड़क पार करते हुए श्री राजेंद्र चौहान गिर गए और बहने लगे। ये देखकर सर्बानंद साहा उन्हें बचाने के लिए गहरे पानी में कूद पड़े। बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर खींचकर उनकी जान बचाई। सर्बानंद साहा ने अपने वीरतापूर्ण कार्य से डूबते हुए व्यक्ति की जान बचाई। सर्बानंद साहा। बिधोवन, केरला, 14 साल 9 महीने उनकी उम्र है। 28 जनवरी 2015 की घटना है। बिधोवन और उनका मित्र जॉयल लोहे की एक छड़ी से नारियल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अचानक छड़ी 11 किलोवाट की विद्युत लाइन से छू गई। जॉयल तुरंत ही करंट की चपेट में आ गया। विधोवन ने उसको छुड़ाने का प्रयास किया, रबर की चप्पलों का उपयोग किया। एक बार फिर विधोवन अपनी रबर की चप्पलों से लोहे की छड़ पर उसने मारा और इस बार अपने प्रयास में सफल रहा। विधोवन ने अपने निश्चयपूर्ण एवं साहसिक कृत्य से अपने मित्र का जीवन बचाया। विधोवन। आनंदी दिलीप, केरला, 14 साल 7 महीने इनकी आयु है। 30 जून 2015 की घटना है। आनंद दिलीप और उसका मित्र सूर्यदेव अपनी साइकिल से ट्यूशन क्लास के लिए जा रहे थे। एक पुल को पार करते हुए अचानक सूर्यदेव फिसलकर एक 10 फुट गहरी नहर में गिर गया। मानसून के कारण नहर उफान पर थी। अपने मित्र को जूझते देख वो पानी में कूद पड़ा। आनंदो अंत में अपने डूबते हुए मित्र को बचाने में कामयाब हो गया। आनंदो दिलीप के अनुकरणीय साहस ने एक जीवन बचा लिया। आनंदो दिलीप। मॉरिस यंगखोम, मणिपुर, 14 साल 8 महीने इनकी आयु है। 8 मार्च 2015 की दोपहर मॉरिस और 13 वर्षीय रॉडिन बिल्डिंग की छत पर खेल रहे थे। तभी रॉडिन को करंट लग गया। एक टूटी हुई बेड की कुर्सी देखकर मॉरिस उसे उठाकर रॉडिन के पैरों, कमर और कंधों पर मारने लगा। 4-5 बार तीव्र प्रयास करने के बाद रॉडिन करंट की चपेट से मुक्त हो गया। मॉरिस ने फिर अचेत रॉडिन को छत के मुंडेर से नीचे खींचा। मॉरिस यंगखोम ने अपने साहसिक एवं सामयिक कृत्य से एक जीवन की रक्षा की। मॉरिस यंगखोम। अभिजीत केवी, केरला, 15 साल 1 महीने। 16 जुलाई 2014 की घटना है। जब अभिजीत और उसके मित्र स्कूल से लौटते हुए एक नजदीकी तालाब में तैराकी के लिए रुक गए, उन्होंने देखा कि उनका एक मित्र सौरभ गायब है।
पानी में कुछ बुलबुले देखकर अभिजीत ने तुरंत 25 फुट गहरे तालाब में छलांग लगा दी। यद्यपि उसके प्रयत्न शुरू में सफल नहीं रहे, लेकिन आखिरकार अभिजीत ने अपने मित्र का जीवन बचा लिया। अभिजीत के दृढ़ निश्चय और पराक्रम ने उसके मित्र का जीवन बचाया। अभिजीत केवी। साई कृष्णा अखिल किलांबी, तेलंगाना, 14 साल 11 महीने इनकी आयु है। 4 जनवरी 2015 की घटना है। श्रीमती प्रसूना ने गीले हाथों से इन्वर्टर का प्लग निकालने की कोशिश की और तुरंत ही करंट की चपेट में आ गई। उनका बेटा अखिल दौड़कर गया। उसने मकान मालिक को बिजली का मेन स्विच बंद करने के लिए कहा और प्लास्टिक वाइपर उठाया और तीव्रता से अपनी मां के हाथ से बिजली का तार छुड़ाने का प्रयत्न किया। चूंकि फर्श गीला था तो उसने तार को लकड़ी की मेज पर डाल दिया। इस तरह से अद्भुत साहस और तत्परता का परिचय देते हुए साई कृष्णा अखिल ने अपनी मां की जान बचाई। साई कृष्णा अखिल किलांबी। मोहम्मद शमना, केरला, 14 साल 1 महीना इनकी आयु है। घटना है 22 अप्रैल 2015 की, जब 2 वर्षीय रिया फातिमा अपनी सहेली रफा फातिमा के साथ घर जा रही थी। अकस्मात रिया एक 2.5 मीटर गहरे तालाब में गिर गई। सब असहाय खड़े देख रहे थे, तभी मोहम्मद शमनाद वहां पहुंचा। वो तुरंत तालाब में कूदा और छोटी बच्ची को बचा लिया। मोहम्मद शमनाद ने समय रहते शौर्यपूर्वक एक नन्ही जान को बचाया। मोहम्मद शमनाद। अविनाश मिश्रा, उड़ीसा, 17 साल 9 महीने इनकी आयु है। 5 अप्रैल 2015 की घटना है, जब 3 लड़के अविनाश मिश्रा, विधुभूषण और सत्यनारायण मिश्रा नदी के घाट पर स्नान कर रहे थे। विधुभूषण, जो अच्छा तैराक नहीं था, फिसलकर पानी की गहराई में चला गया। अविनाश मिश्रा तुरंत ही 20 फुट गहरी नदी में कूद पड़ा। विधुभूषण को गहरे पानी से बाहर खींचकर सुरक्षित किनारे पर ले गया। अविनाश ने उसे प्राथमिक चिकित्सा भी दी। अविनाश मिश्रा ने अपने शौर्यपूर्वक कृत्य से एक बहुमूल्य जीवन की रक्षा की। अविनाश मिश्रा। शिवांश सिंह, उत्तर प्रदेश, 13 साल 9 महीने इनकी आयु थी। 17 जून 2015 की घटना है। ये पुरस्कार इन्हें मरणोपरांत प्राप्त हो रहा है। शिवांश सिंह और उनके 5 मित्र सरयू नदी के घाट पर स्नान करने के लिए गए हुए थे। स्नान करते हुए विवेक नाम का एक छात्र 50 से 60 फुट गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। शिवांश तैरकर वहां पहुंचा और विवेक को बचाने का अथक प्रयास किया। कुछ हद तक उसे नदी के किनारे ले भी आया, परंतु फिर भी विवेक को बचा न सका। दुर्भाग्यवश शिवांश ने भी इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। शिवांश ने अपने मित्र को बचाने के साहसिक प्रयास में स्वयं का बलिदान दिया। मैं शिवांश के माँ पिताजी से निवेदन करती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमल द्वारा यह पुरस्कार हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इन वीरों पर इस देश को नाज है। बच्चों, माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन वृत्तांत अगर हम पढ़ेंगे तो हमें उनके बचपन के संघर्ष और साहस के कुछ प्रेरणामय प्रसंग पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दरअसल माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जीवन ही है वो उनका संदेश है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपसे विनम्र विनती करते हैं कि हिम्मत से लबरेज तेज माँ भारती के इन बच्चों, प्राणों की आहुति देने वाले बच्चों के परिजनों को हम सबको कृपया संबोधित करें। मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमती मानका जी, गीता जी, और आज
जिन वीर बालकों को पुरस्कार मिल रहा है और उनके परिवारजन और सभी उपस्थित महानुभाव, मैं इन सभी बालकों को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उनके माता पिता का भी गौरव करता हूं। लेकिन मैं देख रहा था कि ज़्यादातर पुरस्कार पानी से जुड़ा हुआ है और कुछ जो है बिजली से जुड़ा हुआ है। शायद ये बातें होगी जो जल्दी ध्यान में आती होगी। घटना का उतना महत्व नहीं होता है कि जितना कि उस समय, उस पल, उस बालक के मन में विचार कैसे आया और कैसे उसने कदम उठाया। हम भी देखते होंगे, हमारे जीवन में भी बहुत सी घटनाएं तो घटती होगी, लेकिन उस समय हमें ध्यान नहीं आता है कि हाँ इसका ये हो सकता है। और इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड और उसके अनुरूप एक्ट, उसी का परिणाम होता है कि किसी का साहस किसी को नई जिंदगी देता है। ये वो बालक हैं जिन्होंने उस प्रकार की बातों को कर दिखाया है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में साहसी स्वभाव बनना चाहिए। अगर साहसी स्वभाव नहीं बनता है, साहस सिर्फ एक घटना रह जाती है, तो फिर समाज जीवन में जिस प्रकार के लोगों की जरूरत होती है उसकी कमी महसूस होती है। जिन बालकों ने इन बातों को किया है, हमें आज लगता होगा हाँ यार ठीक है कर लिया होगा, लेकिन उस घटना के संबंध और परिप्रेक्ष्य को देखें तो पता चलता है ये कैसे किया होगा। उस समय अगर तार आया, उसको प्लास्टिक के स्लीपर याद आ गए, उसको करंट लगता है तो बचाना चाहिए, सारी चीजें एक साथ उसके मन में आई, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। वरना ठीक है कोई देखे तो कोशिश करेगा कि चलो मैं जरा बचा लूं, लेकिन इतनी चीजों को एक साथ जोड़ करके सफलतापूर्वक कर लेता है तो उसका मतलब कोई न कोई उसका मन चलता है। सामान्य रूप से व्यक्ति बहादुर है इसलिए साहसी होता है ऐसा जरूरी नहीं है। बहादुर होता है व्यक्ति, लड़ाई के मैदान में है तो परास्त भी कर सकता है, लेकिन जब तक भीतर संवेदना नहीं होती है साहस प्रकट नहीं होता है। किसी के लिए कुछ करने का भाव सहज रूप से स्वभाव का हिस्सा नहीं हुआ है तो नहीं होता है। और यह तब होता है जब हर एक के प्रति अपनापन का भाव हो। हमारी आंख में कुछ गिर जाए तो कोई सर्कुलर नहीं निकालना पड़ता है, अब हाथ ऊपर जाएगा, आंख के पास जाएगा और आंख को ठीक करेगा, ऐसा सर्कुलर नहीं निकालना पड़ता है। लेकिन आंख में कुछ गिरा नहीं कि हाथ वहां पहुंचा नहीं, उंगली ने जाकर के कुछ न कुछ आंख की मदद की नहीं। क्यों करते हैं? क्योंकि अंगांगी भाव होता है। शरीर का एक अंग दूसरे अंग के साथ इतना आत्मीयत रूप से जुड़ा हुआ होता है कि सहज रूप से शरीर का दूसरा अंग एक्ट करता है। समाज जीवन में भी मानव जात के प्रति, समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति
जब ये अंगांगी भाव होता है, अपनत्व का भाव होता है, मैं इस समग्रता का एक हिस्सा हूं, तब जाकर के उसके लिए कुछ करने की प्रेरणा पैदा होती है और वो साहस में परिवर्तित होकर के स्थितियों को बदलती है। इन बालकों ने जो काम किया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि यही एक तस्वीर, यही एक घटना, वही उनकी जिंदगी के लिए सब कुछ नहीं हो जाना चाहिए, वरना एक ग्लैमर आ जाती है, वाहवाही हो जाती है। घर में मेहमान आते हैं तो माँ बाप भी पहली 10 मिनट यही बात बताते रहते हैं, वो मेहमान 4 बार आएगा तब भी वही बात बताते रहते हैं, तो बहुत स्वाभाविक भी है। लेकिन कभी कभार ये विकास यात्रा के लिए रुकावट भी बन जाती है। मैं नहीं चाहूँगा कि इन बालकों के जीवन में ये पुरस्कार, ये सम्मान, ये गौरव गाथाएं, ये घटनाएं वहीं पर रुक जाएं, उसकी जिंदगी को रोक देना। उसकी जिंदगी निरंतर नई ऊंचाइयों को पार करनी चाहिए। और आज जो पुस्तक का विमोचन हुआ है वो उस बात को लेकर के संग्रहित किया गया है कि उन बालकों को पुरस्कार तो मिला, बाद में क्या हुआ, इस पुस्तक में उन बातों को खोज करके रखा गया है। ये मैं समझता हूं सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन में एक पल थी, उस पल में कुछ कर दिखाया, लेकिन वो पल ही जिंदगी नहीं है, हजारों करोड़ों उन पल से जिंदगी बनती है। उस यात्रा का पूरा खाका इस किताब में है। मुझे विश्वास है कि बालक और उनके परिवारजन, बाकी लोग भी ऐसे बालकों की तरफ उनका ध्यान जाएगा कि जिसने अपने बचपन में कुछ किया था लेकिन उसने निरंतर कुछ करता रहा था। जीवन के कुछ कालखंड में जब पहुंचा तो अपने पैरों पर खड़े होकर के उसने समाज के लिए क्या किया, वो सारी बातें इस किताब में हैं। मैं उन सभी बालकों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। कृपया साहस की मिसालों के साथ इन्हें फोटो का एक सौभाग्य हासिल कराएं। सभी बच्चे यहाँ मंच पर आएं और अवॉर्डीज माननीय, इसके बाद परिजनों के साथ भी फोटो है, तो हमारा आपसे निवेदन है कि कृपया उसके लिए भी थोड़ा आप वो भी सौभाग्य हासिल कराएं।